A powerful crisis has came into disciples' life. मेरे प्रियो, एक बहुत ही दुखद और कठिन समय उनके चेलों के जीवन में आ गया। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है on the third day when Jesus rose from the dead, और तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे, there was a hope. वहां पर एक आशा था। But he was resurrected from the dead, that's all. आशा तो था, परंतु बात तो एक ही थी, सिर्फ कि वो मरे से जी उठे हैं, बस। But there was one question arising in disciples' life. What about our family? How we can run our family now? क्योंकि उनके चेलों के हृदय में ये बात आने लगी कि अब हमारे परिवार का पोषण, परिवार का देखभाल कैसे किया जाएगा। There was a big question which was coming into their mind. एक बहुत बड़ा सवाल उनके दिमाग में, उनकी चिंताओं में आ गया था। And they went there for fishing. और उसके बाद वो सचमुच मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। From where they have been called, they were returning to that place. जिस स्थान से उन्हें बुलाया गया था, जिस कार्य से उन्हें बुलाया गया था, वो अपने कार्यों को वापस चले गए। And the whole night they were trying their level best. They could not get anything. और पूरी रात उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मछलियों को वो पकड़ पाए, परंतु वो नहीं पकड़ पाए। And the Bible says Jesus appeared to them. और बाइबल कहती है कि उस घड़ी यीशु मसीह वहां पर उनके सामने आ गए। And he came and he shown the place from where you have to catch the fish. और प्रभु यीशु ने आके उन्हें वो स्थान दिखाया कि कहां से तुझे मछलियां पकड़नी है। And the Bible says they caught almost 153 fish. और बाइबल कहती है कि लगभग 153 मछलियां उन लोगों ने पकड़ ली। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। 153 fish they caught on that particular day. 153 मछलियां उस खास समय पे उनके चेलों ने पकड़ ली। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। They never thought that these many fishes they are going to caught on that particular day. उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि इतनी सारी मछलियां उस खास समय पे वो पकड़ पाएंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। And then the Lord Jesus says, bring those fishes to me so that we can have breakfast. Amen. हालेलुया। और तब प्रभु ने कहा कि उन मछलियों को तुम लेके आओ ताकि हम कुछ थोड़ा खा के नाश्ता कर सके। That was the first blessing after the resurrection of our Lord Jesus Christ in Peter's life. याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस के जीवन का वो पहला आशीष था। That was the first miracle in Peter's life. वो पहला चमत्कार था पतरस के जीवन। That he caught so many fishes. उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया under the guidance of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में। Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया जीसस। Amen. आमीन। Glory to Jesus. Hallelujah. सचमुच प्रभु को महिमा मिले। Now, do you want that opportunities in your क्या life? आप चाहते हैं इस तरह का अवसर प्रभु आपके जीवन में दे दे? Praise God. Praise the Lord। And that was a very hard time for Peter. Amen. याद रखना मेरे प्रियो, पतरस के लिए वो बहुत ही कठिन समय था। Amen. आमीन। And we are going through that tough time. सचमुच मेरे प्रियो, उस तरह के कठिन समय से हम सब गुजर रहे हैं। Whole night they worked, but they could not able to caught it. But in the पूरी रात्रि उन्होंने बड़ी मेहनत की, परंतु वो मछलियां नहीं पकड़ पाए। but लेकिन when the Lord Jesus came, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए, Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, Hallelujah. हालेलुया, They caught fishes. और उन्होंने मछलियां पकड़ी। I'm not sending you to catch fish, okay? मैं आपको कोई मछली पकड़ने की तैयारी में नहीं लगा रहा कि आप मछलियां पकड़ेंगे। That catching of that fish was a great blessing for the disciples' life. लेकिन उनके चेलों के जीवन में उन मछलियों को पकड़ना एक बहुत बड़ा आशीष का कारण था। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the From Lord। there only their journey has begun. Amen. और वहीं से तो उनकी यात्रा शुरू हो गई। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to hear more words क्या now? आप तैयार हैं और भी वचनों को सुनने के लिए? Praise the Lord. Praise the Lord। Amen. हालेलुया। And Lord Jesus loves you. Amen. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Praise the Lord. He loves you so much। 3 days back he shown me this particular vision which I was preaching now.
और 3 दिन पहले ही परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिखाया था जिसके विषय में मैंने प्रचार किया था। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Glory to Jesus. आमीन। Praise God. Praise the Lord. Are you ready to hear the word? क्या आप तैयार हैं अब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? Praise the Lord. हालेलुया। Directions will come from the Lord. Amen. याद रखिए जितना भी निर्देशन या मार्गदर्शन है वो सब स्वयं प्रभु यीशु से आपको मिलेगा। Remember one thing, that Lord Jesus is standing on the other side. याद रखिए दूसरी तरफ यीशु मसीह आपके लिए खड़े हैं। Amen. आमीन। You are in this side and the other side the Lord Jesus is there. एक किनारे छोर पर आप खड़े हैं और दूसरे किनारे की छोर पर प्रभु यीशु खड़े हैं। In one side you are working so hard, एक तरफ तो आप बहुत कठिन परिश्रम कर रहे and the हैं other side the Lord Jesus is watching you. और दूसरी तरफ से प्रभु यीशु दूर से आपको देख रहे हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Because he has resurrected from the dead. क्योंकि Amen. वो तो मरे हुए से जी उठे हैं। He is also watching the hard work also. वो Amen. आपके कठिन परिश्रम को बड़े नजदीकता से देख रहे And the हैं। Bible says the Lord Jesus was watching them. They are working so hard from all Hallelujah. night. They could not get any fish. And the morning when it come, he says, "Come, put your net in this place." और यीशु मसीह बड़े नजदीकता से उनके कठिन परिश्रम को देखते हैं कि वो रात भर मेहनत करते हैं और उन्हें मछलियां नहीं मिलती और फिर प्रभु कहते हैं इस स्थान पे तू अपने जाल को डाल और उसके बाद उन्हें आशीष मिलती है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful time. सचमुच कितना सुंदर समय था वो। Praise God. हालेलुया। They got abundance of blessing in one night. Amen. एक ही रात में उन्हें बहुतायत का आशीष मिल गया। Amen. आमीन। In one night, they worked hard in the morning. They able to meet the Lord Jesus Christ. रात भर उन्होंने कठिन परिश्रम किया और सवेरे उठते ही उन्हें प्रभु यीशु मिल गया। Okay, can we close our eyes and let's pray to God? Amen. क्या हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें? Father, I pray in the mighty name of Jesus. Blessed us with the wonderful word. And today, as we are going to minister this word, Lord, I pray that you are going to help us and you are going to take us into different level. Hallelujah. So that your people will hear it and be blessed it. In the mighty name of Jesus, open their eyes and ears to see your glory. Hallelujah. Let your glory will manifest into their lives. Hallelujah. And bless them, Lord. In Jesus' mighty name I pray. आमीन। Amen. Can I see your hands? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Today the Lord is going to bless you with a wonderful word. सचमुच मेरे प्रियो आज प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे एक सुंदर वचन से। I'm going to read one verse, okay? मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। The Bible says, Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. बाइबल यूं कहती है सदोपदेशक उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says he has made everything beautiful in his time. बाइबल यूं कहती है कि उन्होंने हर कुछ बहुत सुंदर बनाया है अपने निर्धारित समय में। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. He has made everything beautiful in his time. उन्होंने हर कुछ बहुत ही सुंदर बनाया है अपने निर्धारित समय के अनुसार। So I have no problem in his time, okay? इसी से उनके समय के लिए इंतजार करना मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। Because when his time will come, everything will become beautiful. क्योंकि मुझे मालूम है जब उनका समय आएगा तो सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। Today my message is all about time. याद रखना मेरे प्रियो आज का जो संदेश है आपके जीवन के लिए वो समय के ऊपर है। Hallelujah. आमीन। In the old covenant, whenever you read, the Bible says there is a time for everything. जब आप पुरानी वाचा में पढ़ते हैं तो आप इस बात को पाते हैं कि वहाँ कहा जाता था हर एक चीज का एक निर्धारित समय है। Hallelujah. आमीन। When you read from verse 1 onwards, अगर आप पहले वचन से पढ़ेंगे the Bible says for everything there is a season and a time for every matter under heaven. बाइबल कहती है कि हर एक चीजों के लिए वहाँ एक मौसम है, एक समय है स्वर्ग के नीचे। A time to be born, एक समय है जन्म लेने का, a time to die, एक समय है मृत्यु का, a time to plant, एक समय है बोने का, a time to kill, एक समय है हत्या करने का, and a time to heal, और एक समय है चंगा करने का, a time to break down, एक समय है टूट जाने का, and a time to build up.
एक समय है तैयार करने का, a time to weep and a time to laugh, एक समय है रोने का और एक समय है हंसने का, and a time to mourn, a time to dance, एक समय है विलाप करने का और एक समय है नाचने का, a time to cast away stones, a time to gather stones together, एक समय है उन सारे पत्थरों को अलग करने का और एक समय है उन सारे पत्थरों को जोड़कर एक करने का, a time to embrace and a time to refrain from embracing. एक समय है गले लगाने का और एक समय है सबको अलग करने का। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन। God has made a time for everything. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक चीजों के लिए अपने अनुसार एक समय को निर्धारित किया है। I'm not preaching according to my understanding. This is the word of God which is देखिए written. मेरे प्रियो, इन वचनों को सुनकर मैं अपनी समझ से कोई प्रचार नहीं करता। परमेश्वर के वचन में सदोपदेशक में इस बात की घोषणा की गई है। And the Bible also says बाइबल और ये भी कहती है, the Lord Jesus was born according to the time. हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म एक निर्धारित समय पर हुआ। The Bible says according to Galatians chapter 4 and verse 4, और बाइबल कहती है, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय की 4 वचन में यूं लिखा है, but when the fullness of time had come, जब संपूर्ण रीति से वो समय आ गया, God sent forth his son, born of woman, born under the law. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा एक स्त्री से पैदा लेने के लिए, और वो सचमुच व्यवस्था के अंतर्गत उसका जन्म हुआ। Hallelujah. हालेलुया। He was born under the law. याद रखिए, उनका जन्म व्यवस्था के तहत हुआ। Praise God. आमीन। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, because in the old covenant for everything under the law there was a time. याद रखिए, पुराने नियम के अनुसार, पुराने वाचा के अनुसार हर कुछ जो हुआ करता था एक निर्धारित समय के अनुसार हुआ करता था। Amen. आमीन। Sometime in our life कई बार हमारे जीवनों में भी there is a time for everything. हर एक चीज का एक वक्त तय किया गया है। Hallelujah. आमीन। But it is also amazing to see in the New Testament there is some changes there in timing also. हालेलुया। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो हम इस चीज को पाते हैं कि समय में एक अद्भुत बदलाव। Sometimes we walk under the law कई बार तो हमें व्यवस्था के अंतर्गत चलना पड़ता है, and sometimes we have to walk under the grace of और God. कई बार तो हमें अनुग्रह के अंतर्गत चलना पड़ता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Now let's come into a beautiful scripture which I'm going to take you from John chapter 2. आइए एक सुंदर वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। This miracle was happened when Jesus' ministry has begun. ये चमत्कार तब हुआ मेरे प्रियो जब यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई की शुरुआत की। Praise the Lord. आमीन। It was the introduction of our Lord Jesus Christ. आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह को वहां पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to read from John chapter 2 and verse 1 onwards. और मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन से आगे की ओर चलूंगा। On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. और गलील में एक शादी का समय था, कानान में। वहां पे वो शादी तीसरे दिन तय हुआ। Amen. आमीन। And the Lord Jesus' mother was there, and Lord Jesus and his disciple has also been invited to the wedding. प्रभु यीशु मसीह और उनकी माता और यीशु मसीह के सारे चेलों को भी आमंत्रण किया गया। Amen. आमीन। There was a wedding going on. वहाँ पे एक विवाह हो रहा है। Lord Jesus' mother was there, यीशु मसीह की माता वहाँ मौजूद है, and Lord Jesus and his disciples were invited to that wedding. और यीशु मसीह और उनके चेलों को उस विवाह में निमंत्रण भेजा गया है। And now let's go to verse 3. और तीसरे वचन की ओर चलते हैं। The Bible says, and the wine was over. और बाइबल यूं कहती है कि दाख रस खत्म हो गया। When the wine was over, जब दाख रस खत्म हो गया, the Lord Jesus' mother said to him, और यीशु मसीह की माता ने उनसे कहा, they have no wine. उनसे कहा कि अब उनके पास दाख रस खत्म हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Wedding is going on. शादी का समारोह चल रहा है। Bridegroom and bride are there in that wedding. दूल्हा दुल्हन मौजूद है
उस विवाह में, people are coming and having their food. लोग आ रहे हैं, अपने भोजन को कर रहे हैं। Amen. आमीन। Suddenly a crisis has happened. अचानक से उस विवाह में एक बहुत बड़ी कमी घटी आ जाती है, And the Bible says there was no wine. और बाइबल यूं कहती है कि उस विवाह के समारोह में दाख रस खत्म हो गया। That means emergency has come there. Amen. जिसका ये मतलब है कि उस स्थान पे आपातकालीन की घोषणा हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। And the mother of Jesus knew that there is no wine. अब यहाँ पर ये चीज पता चलता है कि यीशु मसीह की माता को ये मालूम है कि विवाह में अब कोई दाखरस नहीं है, And she told her son Jesus that there is no wine. और उनकी माता ने आकर अपने पुत्र यीशु को कहा कि अब विवाह में सचमुच दाखरस खत्म हो गया। Hallelujah. आमीन। And you know what the Bible says? आपको मालूम बाइबल क्या कहती In है? verse 4 it says, Woman, why do you involve me? और चौथे वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे स्त्री, तुम मुझे क्यों शामिल कर रही है? Amen. आमीन। Now this is very amazing ये बड़ी अद्भुत बात है that Lord Jesus is not saying mother, but he says woman. यहाँ पर अपनी माता को यीशु मसीह माता ना कहकर एक स्त्री के रूप से संबोधित करते हैं। Hallelujah. आमीन। Physically the wine is over. आप अगर देखें तो अपनी आंखों से तो आपको समझ में आएगा कि उस विवाह में वो दाखरस सचमुच खत्म हो गया है। But the Lord Jesus is talking spiritually. परंतु यीशु मसीह जो उत्तर दे रहे हैं अपनी माँ को, वो आत्मिक उत्तर दे रहे He हैं। says woman, वहाँ पे कहते हैं स्त्री, woman. स्त्री। Hallelujah. हालेलुया। I will come to that point why he said woman, okay? मैं इस क्षेत्र में आऊंगा कि यीशु मसीह ने अपनी माता को स्त्री कहकर क्यों बुलाया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। There are two places he said woman, okay? यस, हमें मालूम है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और जानते हैं कि दो स्थानों पर यीशु मसीह ने अपनी माता को स्त्री कहकर संबोधित किया है। He says, why do you involve me? अब वो कहते हैं प्रभु कि तू मुझे यहाँ पे क्यों शामिल कर रहा है? And then the Lord Jesus replied to her and he said, my time has not yet come. और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। Listen, there is a crisis. अब समझने की बात तो यह है कि विवाह में सचमुच आपातकालीन परिस्थिति हो गई है, And the Lord Jesus knew about it. और यीशु मसीह को मालूम है, But still the Lord Jesus says, why you are involving me in और this? प्रभु यीशु मसीह फिर भी कहते हैं कि तुम मुझे इसमें क्यों शामिल करते हो? But the Lord says, my hour or my time has not yet come. परंतु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि मेरा समय, वो घड़ी अभी नहीं आया है। That means he was waiting God to demonstrate his power. क्योंकि इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर अपने सामर्थ को उस स्थान पर प्रकट करने पाए। Because every time whenever Lord Jesus was moving in this earth, he is taking the direction of the Father and he is doing according to the instructions of the Father. क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब भी कुछ कार्य करते थे, वो तब तक इंतजार करते थे कि उनके पिता उनको वो आज्ञा दे और उसी सामर्थ्य में वो कार्य करने पाए। Today we are also blessed by the instructions of the Holy Father. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इसलिए आशीषित हैं क्योंकि अपने उस पवित्र पिता के निर्देशन पे, उनकी आज्ञाओं पे, उनकी इच्छाओं के अनुसार हम चलते हैं। That's why Holy Spirit has been given to us so that he can direct us and he can bless us through the name of the Lord Jesus इसी से Christ. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि वो हमारे लिए मार्गदर्शन तैयार करे, हमें वो निर्देशन दे, और ताकि हम आशीषित होने पाए यीशु मसीह के When द्वारा। Lord Jesus was there in the world, he was only came into this world to do the will of the Father. याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे एक ही कार्य करने आए थे कि अपने पिता की इच्छा को पूर्ण कर दें। Amen. आमीन। The Lord Jesus knew the crisis. यीशु मसीह को मालूम है कि उस विवाह में अब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आपातकालीन परिस्थिति जैसे नजर आ रहा है, And no one, his own mother, is asking the help. और ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति, उनकी अपनी माँ आकर अपने बेटे से कहती है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. His own mother is asking for a help. उनकी अपनी माँ उस मदद का गुहार अपने बेटे से करती है। But the Lord Jesus says, no, my time has not come. यीशु मसीह तो साफ कह देते हैं, मेरा समय तो अभी नहीं आया। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। When this word of God says there is no wine means
परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम इसे समझे कि ये बात कहा गया है कि अब दाखरस खत्म, Amen. आमीन, That means जिसका ये अर्थ है, I sense in my spirit मैं अपनी आत्मा में ऐसा महसूस करता हूँ, there is no money, क्योंकि इसका ये अर्थ है कि धन तो अभी नहीं है, no business, अभी व्यवसाय भी नहीं है, no job, कार्य भी नहीं है, no peace, शांति भी नहीं है, no breakthrough, कोई आगे बढ़ने का जरिया नहीं है, no child, no job, यहाँ तक कि संतान भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, no healing, only terrible pain. कोई चंगाई नहीं, बहुतायत का दर्द, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। For every word which you wanted, it says no, no, no. आप अपने जीवन में ऐसे वचनों को चाहते हैं कि आपके लिए आ जाए, परंतु परमेश्वर यहाँ पे वचन के अनुसार कुछ भी नहीं है अभी आपके लिए। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। You are just looking for, बस आप इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं, you are just waiting for something. आप इंतजार कर रहे हैं अपने किसी चीज के लिए, You are hoping for good miracles. आप आशा कर रहे हैं कि अच्छे चमत्कार हो जाएं, But the crisis says there is nothing there. लेकिन परिस्थितियां कहती है कुछ भी नहीं हो सकता। Hallelujah. आमीन, Praise the Lord. Praise the Lord। Who knows it? किसको मालूम है? According to the scripture, the mother of Jesus knows about it. लेकिन वचनों के अनुसार इस बात का खुलासा ये होता है कि यीशु मसीह की माता को मालूम है, कि there is no wine. उनको ये मालूम है कि दाखरस खत्म हो गया। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, church also knew it. There is nothing or no money or no job or no business in the lives of the people. यहाँ पे उसी तरह से कलीसिया को भी मालूम है कि अभी धन की बहुत कमी है, नौकरियां नहीं है और उनके लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Who knows your problem? किसको मालूम है आपकी परेशानियां? The church knows the problem. कलीसिया को मालूम है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Because Lord. we come together and we pray for one another. क्योंकि हम एक साथ एकत्रित होकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The mother of Jesus was involved in that wedding. और माता जो है प्रभु यीशु की उस शादी में संपूर्ण रीति से शामिल हैं। And right now the Holy Spirit is also involved with everyone. और वहाँ पर पवित्र आत्मा भी सबके साथ शामिल हैं। There are 3 types of people in that place, okay? उस विवाह के स्थान पर 3 तरह के लोग मौजूद हैं। Number 1, पहला, his own mother. उनकी अपनी माता। Number 2, दूसरा, Lord Jesus himself. स्वयं प्रभु यीशु मसीह। And number 3, तीसरा, there are servants. वहाँ पे कुछ नौकर। His mother says there is no wine. उनकी माँ कहती है कि दाखरस खत्म। Amen. आमीन। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Holy Spirit who runs this church. कलीसिया जो चलाती है स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा। Now I know that the Holy Spirit can provide everything, okay? मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक जरूरतों को पूर्ण कर देगी। But only He can provide through Lord Jesus Christ. लेकिन याद रखिए वो तभी आपके जीवन में पूर्ण करेंगे, वो यीशु मसीह के द्वारा। Amen. आमीन। Amen. Amen. Now the Holy Spirit says there is no money in the church. अब कलीसिया, पवित्र आत्मा कहते हैं कि अब कलीसिया के पास यानी कि धन नहीं है। Amen. I'm not talking about the church. I'm talking about everyone, okay? अब आप कोई बिल्डिंग देखकर चर्च ना सोचिए, ये आप सबके विषय में बात हो रही है। The Holy Spirit, there is no money in the lives of the people or in the believer's life. पवित्र आत्मा कहते हैं कि मेरे लोगों के जीवन में धन की कमी है। Amen. आमीन। There is no business. अब उनके जीवन में व्यवसाय भी नहीं There है। is no joy. अब उनके जीवन में आनंद भी नहीं है। There is no peace. अब उनके जीवन में शांति नहीं The है। Holy Spirit is interacting with the Lord Jesus Christ. अब पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो प्रभु यीशु के साथ सचमुच उस संगति को करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. That means Holy Spirit is inspiring the Lord Jesus do something. यहाँ पर ये अर्थ है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को कहते हैं कि कुछ करो अब। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। Why the Holy Spirit is telling Jesus? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्यों कहते हैं? And why mother of Jesus is saying to Lord Jesus? और उनकी माता भी क्यों कहती हैं? Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। Mother of Jesus knew it. यीशु मसीह की माता को मालूम है। Who is Jesus? उनको ये मालूम है कि यीशु मसीह है कौन।
Hallelujah. Yes, my Lord. When Mary was pregnant and Lord Jesus was there in her womb for 9 months, she knew whom she was carrying. जब मरियम सचमुच गर्भ से थी, गर्भवती थी और 9 माह तक उसने उस संतान को अपने गर्भ में पाला, तो उसको ये मालूम है कि यीशु मसीह है कौन। Hallelujah. Hallelujah. Because she heard from the heaven that he is the savior of the world. क्योंकि उसने स्वर्ग से स्वर्गदूत से सुना था कि ये सचमुच संसार को बचाने वाला एक बेटा है। And when she was talking to Lord Jesus, and when Lord Jesus says woman, that means she knew that he is not my child, he is the child of the Holy Spirit. हालेलुया। जब उनकी माता उनसे कहती है अपनी इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए, और जब यीशु मसीह कहते हैं स्त्री, तो उसी समय उनकी माता समझ जाती है कि मैं अपने बेटे से नहीं, मैं स्वयं परमेश्वर के पुत्र से बात कर रही हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Because she knew that she has conceived by the power of the Holy Spirit. क्योंकि उसको मालूम है कि उसने अपने गर्भ में गर्भ धारण किया था पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। And this child is not an ordinary child, or this Jesus is not an ordinary Jesus. He is the Son of the living God. क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो बेटा है ये कोई साधारण यीशु मसीह नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। And that's why he said to Jesus, there is no wine here. और इसी से उनकी माता ने यीशु को कहा कि दाख रस खत्म हो गया। That means जिसका ये अर्थ है, the one who is in you जिसका ये अर्थ है कि जो आपके अंदर मौजूद है is greater than the one who is in the world. वो बहुत बड़ा और सामर्थी है जो इस संसार में मौजूद है। Through this message you should know the one who is in you is greater than the one who is in the world. इस संदेश के द्वारा आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आपके अंदर वो मौजूद है वो इस संसार में बहुत ज्यादा सामर्थी है। Hallelujah. आमीन। Lord Jesus says, why you are involving me? और प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को कहते हैं कि तुम मुझे अभी क्यों इसमें शामिल करती है? My time has not yet मेरा come. समय अभी नहीं आया है। Praise the Lord. Praise the Lord. But the Bible says और बाइबल यूं कहती है in verse 5, 5वें वचन में, his mother said to his servants, do whatever he tells you. उसकी माता सारे नौकरों को ये निर्देशन देती है कि जो कुछ भी ये कहता है उसे पूर्ण करो। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Now हालेलुया। listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए। The wine is over. यहाँ पर दाखरस खत्म, A crisis has already come in the यहाँ wedding. पे आपातकालीन परिस्थिति पहले ही शुरू हो गई है। But there are only 3 types of people who knew what is happening. लेकिन 3 तरह के लोगों को यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Number 1 is mother. पहले तो उनकी माता, Number 2 is Lord Jesus. दूसरा स्वयं प्रभु यीशु मसीह, And number 3 is the servants. और तीसरा जो वहाँ के नौकर चाकर हैं उन्हें मालूम है। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, today, आज Holy Spirit knew your problem. पवित्र आत्मा को आपकी परेशानियां मालूम है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say everybody hallelujah. हालेलुया। God knows my troubles. आपके परमेश्वर को आपकी परेशानियां मालूम है। Holy Spirit knows about every problem you are going through. पवित्र Hallelujah. आत्मा को आपके जीवन के हर एक परेशानियां मालूम है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now we are talking in the spirits, okay? लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम आत्मा में बात कर रहे The हैं। words which we declare in spirits, they are life. याद रखिए, जिस भी वचनों की हम घोषणा करते हैं आत्मा में, उनमें ही जीवन है। Amen. आमीन। There was a crisis. सचमुच वहाँ पे आपातकालीन परिस्थिति है। Amen. आमीन। And the mother of Jesus says to his servants, do whatever he tells you. और यीशु मसीह की माता नौकर चाकरों को ये कहती है कि जैसा मेरा बेटा कहता है वैसा ही करना। That means the mother of Jesus was expecting a miracle in that particular time. जिसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह की माता यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठी है कि अभी तो कोई चमत्कार हो के रहेगा। Though his son Jesus says, my time has not yet come, but the mother of the Lord Jesus says, no, do it whatever he says to you. जबकि उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है, परंतु उनकी माता आज्ञा देती है नौकर चाकरों को, वैसा ही कर जैसा मेरा बेटा कहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, the Holy Spirit is also directing to the heavenly kingdom or to the kingdom of Christ
that your time has come in the name of Jesus. उसी तरह से मेरे प्रियो सचमुच पवित्र आत्मा स्वर्ग के उन सारे स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहे हैं कि सचमुच आपका समय आ गया है। His mother said to his servants, do whatever he tells you. और उनकी माता उन नौकर चाकरों को आज्ञा देती है, वही करो जो मेरा बेटा कहता है। Amen. आमीन। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो Holy Spirit is directing the angels of God, do whatever he tells you. उसी तरह से पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों को निर्देशन देते हैं कि मेरे संतानों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए इसी वक्त कर। The Holy Spirit is telling the Lord Jesus, hallelujah. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को स्वयं कहते हैं। Praise God. हालेलुया, Praise God. हालेलुया, Hallelujah. यस माय लॉर्ड। Holy Spirit is there, Lord Jesus is there, an angel of God is there. सचमुच पवित्र आत्मा मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है और परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मौजूद हैं। And three of them are talking. और ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं। Because there is a crisis. क्योंकि वहां पर एक परिस्थिति आ चुकी है आपातकालीन। There is a crisis in the church. सचमुच कलीसिया में भी आज आपातकालीन परिस्थिति है। There is a crisis in the family. परिवार में आपातकालीन There is परिस्थिति a है। crisis in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आपातकालीन की परिस्थिति And the है। Bible says there is no wine. और बाइबल कहती है दाख रस खत्म। Hallelujah. हालेलुया। There is no wine. सचमुच दाख रस नहीं है, There is no joy. कोई आनंद नहीं है। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। And the Holy Spirit is telling the Lord Jesus right now, before the angels, do whatever my Lord Jesus says. और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामने स्वर्गदूतों को कहते हैं, वही कर जो इसी वक्त यीशु मसीह तुझसे कहते हैं। Amen. आमीन। Now see that faith. Hallelujah. देखो उस विश्वास को। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? Hey, hallelujah. क्या आप विश्वास करते हैं मेरे Amen. प्रियो? यस। Praise the Lord. Hallelujah. There was a crisis, सचमुच आपातकालीन परिस्थिति है and Mother Mary, और माता मरियम, amen, आमीन, she is moving in faith वो तो विश्वास में चल रही हैं because she knew क्योंकि उनको मालूम है to whom she is talking. कि वो किससे बातचीत कर रही हैं। She is talking to the Son of the living God. क्योंकि उसको मालूम है कि वो अपने बेटे नहीं वरन परमेश्वर के पुत्र से, जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, Because उससे she बातचीत। knew that when Lord Jesus was born in this world, उसको मालूम है कि जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, angels came down from heaven. उसको मालूम है कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर नीचे आ गए। 3 wise men came down from the east. 3 मजूसी उतर के आ गए मिलने। She knew everything. उसको सब कुछ मालूम She है। knew when he was there in the womb how joyful she was. उसको मालूम है कि जब यीशु मसीह उनके गर्भ में थे तो मरियम कितना ज्यादा आनंद में रहती थी। And she knew उसको मालूम था that if I will tell him by this hour, उसको ये मालूम है कि इस समय अगर मैं उसको कहूंगा, hallelujah, हालेलुया, my words are not going to be rejected. मेरे शब्द मेरे बेटे के द्वारा ठुकराए नहीं जाएंगे। Because these words I'm not telling to his son, but I'm telling to that place or to that kingdom from where that Son of living God has came into this world. क्योंकि उसको ये मालूम है कि ये शब्द मैं अपने बेटे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर के राज्य से आए हुए उस पुत्र को बोल रही हूँ। Hallelujah. Hallelujah. She knew that Jesus has not came from the earth, but he came from the heaven. उसको ये मालूम है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी से नहीं, संसार से नहीं, वरन स्वयं स्वर्ग से उतर के आया। When he was born, angels were working. उनको ये मालूम है कि जब उनका जन्म हुआ था स्वर्गदूत कार्य कर रहे थे। And right now also, अभी भी मेरे प्रियो, by this hour, इस समय when my son will speak, जब मेरा बेटा बोलेगा, when my son will direct, जब मेरा बेटा निर्देशन देगा, angels are going to come and move in that place. और सचमुच स्वर्गदूत आके इस स्थान पे अद्भुत कार्य कर देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maybe today you are hearing this message in a different form, okay? हो सकता है आज आप इस संदेश को एक अलग तरीके से सुन रहे हो, Because I went little depth on this message. क्योंकि इस संदेश के मैं थोड़े गहराई में आपको लेके जा रहा हूँ। See,
No one knew that the wine was over. क्योंकि ये जो समाचार है किसी को नहीं मालूम है कि दाखरस खत्म हो गया। Praise the Lord. आमीन। There were 4 types of people are there. वहाँ पे 4 तरह के लोग थे। Number 1, Jesus' mother, पहला तो यीशु मसीह की स्वयं माता, Lord Jesus, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, and there were servants, नौकर चाकर, and then the 4th one is the disciple also. और चौथा व्यक्ति जो वहाँ मौजूद था उनके चेले थे। Today, आज before this message, इस संदेश के सामने number 1, the Holy Spirit, सबसे पहले पवित्र आत्मा, number 2, Lord Jesus, दूसरे स्वयं प्रभु यीशु, number 3 is angels, तीसरे उनके स्वर्गदूत, and number 4, you. और चौथे आप हैं वो व्यक्ति। Number 4 is you. चौथे आप लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because you are hearing this gospel and this message of God. Hallelujah. हालेलुया, क्योंकि इस समाचार को, इस सुसमाचार को आप सुन रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Now listen what happened. आगे सुनिए कि क्या Verse हुआ। 6 it says, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. हालेलुया। 6वें वचन में यूं लिखा है कि वहां पे बड़े बड़े मटके थे जिसको यहूदी लोग सचमुच उस पूजा पाठ के कार्यों में इस्तेमाल किया करते थे और उसमें 135 लीटर पानी भरा करता था। That means 20 to 30 gallons means 135 liters of उन jars. मटके में, जिसका ये अर्थ है कि 135 लीटर कम से कम पानी भरा जाता था। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। How many jars were there? कितने वहां पे मटके मौजूद थे? It was 6 jars. 6 मटके मौजूद थे। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Before you also there are 6 jars. Okay. याद रखिए मेरे प्रियो, आपके सामने भी 6 मटके मौजूद हैं। Praise God. Praise the Lord. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Because it was there in the word of God. क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन में मौजूद है। Without the jar nothing will happen. याद रखिए, मटके नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। Amen. आमीन। That's why everybody say yes, I have that. आप कहिए कि मेरे पास वो मटके हैं। Hallelujah. हालेलुया। I have those places to store my blessings. मेरे पास वो स्थान है कि मैं अपने आशीषों को इकट्ठा कर सकूं। Come on, come on, come on, wave your hands and अपने say. हाथों को हिला के बता दीजिए कि मेरे पास वो स्थान है कि मैं अपने आशीषों को इकट्ठा कर सकूं। Now see, listen, hallelujah. हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। Before the Lord Jesus will do some miracle, he has to see some places to do the miracle. Hallelujah. इसके पहले कि यीशु मसीह कोई चमत्कार करे, वो एक स्थान को भी ढूंढ रहे हैं। मटके देखा उन्होंने। तब Right. उनको दिखाई दिया मटके। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। That means he's watching something. इसका ये अर्थ है कि वो आपके जीवन में कुछ देख रहे हैं। He's seeing some empty things. Hallelujah. आपके घर में कुछ खाली चीजों को देख रहे हैं। He is watching some empty, hallelujah, vessels. कुछ खाली बर्तनों को ढूंढ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। His eyes are there to see those empty areas. वो आपके घरों में उन अपनी आंखों से उन खाली स्थानों को देख रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord. Today I just want to ask you whether you have that empty vessels or not. क्या है आपके पास वो खाली बर्तन? Hallelujah. Hey, lift your hands and show me your hands. I have क्या that है? empty कह vessel. दीजिए कि मेरे पास वो खाली बर्तन मौजूद है प्रभु Say यीशु। everybody to your spirit. अपनी आत्मा से आप कहिए कि मेरे पास वो खाली बर्तन मौजूद है। Lord Jesus has saw my storehouse. आप कहिए कि प्रभु यीशु, आपने मेरे उस भंडार घर को देखा है। He has saw my storehouse. उसने मेरे भंडार घर को देखा है And I knew it. और मुझे मालूम है That he is going to fill my storehouse. और मुझे मालूम है कि वो मेरे भंडार घर को भर देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Today I am going to give my key of my storehouse. मैं सचमुच आज आपको वो चाबी दे दूंगा जो मेरे भंडार घर का है। That means he is watching our lockers. जिसका ये अर्थ है कि वो सचमुच जहाँ पे धन रखने वाला खास जगह लॉकर पे नजर है। थैंक यू फादर। Say everybody, hallelujah. Yes, my Lord. Say everybody, this key of my locker belongs to you, Jesus. आप कह दीजिए, ये जो कुंजी है मेरे लॉकर या मेरे धन को रखने के लिए, प्रभु आप उसको देख Now लीजिए। listen very carefully. Now why I am saying all these keys and all?
क्यों मैं आपको ये सारी कुंजियों के विषय में बात कर रहा हूं? He is going to bless you. क्योंकि वो आपको आशीष देंगे, But लेकिन the owner of the blessing is Lord Jesus himself. याद रखिए, आपका जो आशीष का जो मालिक है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। And allow him to handle that particular blessing in Jesus' name. और आपको ये आज्ञा देना होगा यीशु मसीह को कि आपके जीवन के ये चमत्कार को वो स्वयं अपने हाथ से चलाएं। Amen. आमीन। Tell him, Lord, fill it and you only use it. आप कहिए कि प्रभु पहले तो तू भर दे और स्वयं तू ही उसके अपने तरीके से इस्तेमाल कर। You only use that. आप ही इसको इस्तेमाल कीजिए। You only guide it. आप ही कैसे चलाना है आप सिखाइए। I'm not going to use it by my own will, but I'm going to use this according to your will. मैं अपनी इच्छा के अनुसार उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वरन मैं तेरी इच्छा के अनुसार उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Whatever I'm going to buy, it must be according to your will. मैं जो कुछ भी खरीदूं प्रभु वो तेरी इच्छा के अनुसार ही हो। Hallelujah. Hallelujah. How many jars were there? 6 jars. कितने बर्तन थे? खाली बर्तन 6। Hallelujah. हालेलुया। Not मटका, not बर्तन, बड़ा बड़ा मटका, drums बोले, drum. Hallelujah. हालेलुया। Praise बड़ा the Lord. बड़ा ड्रम। हालेलुया। 135 liters of 135 लीटर जिसमें आ जाए। Hallelujah. Big drums. हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Yes, my Lord. Say everybody, my drum is ready. आप कह दीजिए कि प्रभु मेरा ड्रम तैयार है। Not 1 drum, 6 drums. आप Okay. एक मत कहिए, 6 ड्रम तैयार है। Praise the Lord. 6 मटके तैयार हैं। And you know what happened? The Lord Jesus said to the servant in verse 7. आपको मालूम फिर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह उन नौकरों को कहते हैं, Amen. आमीन, Fill the jar with water. वो ये कहते हैं कि उन मटकों में अब पानी भर दे। Praise the Lord. हालेलुया। I believe the Lord has already directed his angels. Fill the jar, fill those drums with water. Hallelujah. मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने निर्देशन दे दिया है कि उन सारे मटकों और ड्रमों को पानियों से भर दिया जाए। Hallelujah. We are not हालेलुया। going to wait for some shower of blessing. याद रखिए, कोई बूंदों और बारिशों की तरह थोड़ा सा आशीष नहीं। Through that shower, our drums are not going to be fulfilled. Hallelujah. उतने थोड़े से तो नहीं भरेगा आपके जो मटके हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Amen. Now I'm talking about above showers of blessing. मैं बात कर रहा हूँ सचमुच उससे भी ज्यादा बहुतायत की आशीष के बारे में। Praise the Lord. हालेलुया। Are you ready to receive क्या it? आप तैयार है उसे ग्रहण करने के Are लिए? you ready to receive क्या it? आप तैयार है उसे ग्रहण करने के Are you ready to receive it? लिए? क्या आप तैयार है उसे ग्रहण करने के लिए? When Lord Jesus was resurrected and Peter had that first catch of fish, God gave him abundance. याद रखना मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे तो परमेश्वर प्रभु ने सचमुच पतरस को बहुतायत की आशीष दे दी। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, today आज your expectation must be high. Hallelujah. आज सचमुच आपकी उम्मीदें बढ़ जाएं, Because something is happening in the atmosphere. क्योंकि कुछ तो माहौल वातावरण में कुछ हो रहा है। Something is happening as we are preaching this gospel of Jesus Christ. क्योंकि जब इस यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है तो वातावरण में कुछ हो रहा है। We are preaching those things which has already brought miracles, and those miracles are recorded in the word of God. क्योंकि हम उस चीज का प्रचार कर रहे हैं जो पहले ही सुसमाचार के साथ एक बहुत बड़े चमत्कार को लेके आया है, जो परमेश्वर के वचन में मौजूद है। And this was the first miracles which Jesus has done in the village of Galilee in Cana. और सचमुच कनान और गलील के उस जगह पे यीशु मसीह का ये पहला चमत्कार था। Hallelujah. आमीन। And the Lord Jesus said to his servant, fill these jars और with यीशु water. मसीह ने आज्ञा दिया नौकरों को कि इन सारे घड़ों को भर दो। Praise the Lord. आमीन। Now tell me, what was the crisis? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिए कि कमी किस चीज की थी। The crisis was there is no wine.
कमी ये थी कि दाख रस खत्म हो गया। Amen. आमीन। But what Lord is telling? पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा क्या दे रहे हैं? Fill this jar with water. वो ये आज्ञा दे रहे हैं कि इन मटकों में पानी भर दो। Amen. आमीन। I don't know what crisis is happening in your life. मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या कमियां, क्या घटियां हैं। Amen. आमीन। But the Lord says, fill your jar with water. Hallelujah. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेंगे कि अपने सारे मटकों में पानी भर दो। Amen. आमीन। And we are opened ourselves so that water will be filled in our jar in the mighty name of Jesus. आप सचमुच अपने आप को खोल के तैयार कर दे कि आप सचमुच उन सारे मटकों में उन पानियों को भर दे। That means जिसका ये अर्थ है, fill yourself with the power of the Holy Spirit. जिसका ये अर्थ है कि अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ से आप लोग भर लीजिए। You fill yourself as much. जितना ज्यादा हो सकता है पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप भर जाएं। Say everybody, I am ready to be filled by the power of the Holy आप Spirit. कहिए कि मैं तैयार हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord। And the Bible says they filled all the six jars. और बाइबल यूं कहती है कि उन्होंने सारे 6 मटकों को पानी से भर दिया। And it says they all filled the brim. और बाइबल में ये लिखा है कि उन्होंने मटकों को ऊपर तक भर दिया। Not half or little, they fill it. Hallelujah. Till और the बाइबल brim. कहती है कि उन्होंने आधा या थोड़ा नहीं वरन पूरे मटके को ऊपर तक भर दिया। Now next, now verse 8, okay? और 8वें वचन की ओर चलते हैं। The Bible says, now draw some out, take it to the masters of the banquet. और बाइबल यूं कहती है कि वचन में ये लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि उसमें से कुछ निकालो और जाकर उस विवाह का जिसने सारी तैयारियां की है भोजन पानी का उसको जाके थोड़ा पिलाओ। And the Bible said they did so, and the master of the banquet tasted the water. और बाइबल कहती है कि उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु जो विवाह का सारा चीज तैयारी करने वाला का जो प्रधान था, जब उसने उसे चखा, Hallelujah. And the Bible says they had been turned into wine. और बाइबल कहती है कि वो पानी अपने आप दाख रस में बदल चुका था। Your water is turning into wine. हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका वो पानी दाख रस में बदल रहा है। Your water is turning into wine. सचमुच आपका वो पानी आपके दाख रस में बदल रहा है। That means your crisis is end, blessing began. जिसका ये अर्थ है कि आपके जीवन की कमी घटिया खत्म और आशीष का दौर शुरू। Hallelujah. हालेलुया। Crisis was there for a moment, and suddenly it has changed, and you came into once again into that platform. Hallelujah. हालेलुया। और जो कमी घटी थी वो कुछ समय के लिए है, परंतु अचानक से आपकी परिस्थितियां बदल गई। That means water has turned into wine. जिसका ये अर्थ है कि पानी सचमुच चमत्कारी रूप से दाख रस में बदल गया। Your sorrow has turned into joy. जिसका ये अर्थ है कि आपके दुख आनंद में बदल गए। You have nothing, but you have got everything in abundance. आपके पास कुछ नहीं है और अचानक से आप बहुतायत से भर गए। You lost the job, and suddenly you got the job. अचानक से आपकी नौकरी चली गई और अचानक से आपको नौकरी मिल गई। You were derailed, and now you are in the track now. आप सचमुच अपने मार्ग से अलग हो गए थे, परंतु अब आप अपने ही मार्ग में चल रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। In the same manner, उसी तरह से मेरे in प्रियो, this place, इस स्थान पर the Bible says बाइबल यूं कहती है, the water turned into wine. सचमुच पानी दाख रस में बदल गया। And he did not realize when it had come from. और किसी को पता नहीं चला कि ये कब ऐसा हो गया। Though the servant who had drawn the water knew, then he called the bridegroom aside. और उन नौकरों को मालूम था कि बात क्या थी, परंतु उसी वक्त दूल्हे को एक किनारे पे बुलाया गया। Amen. And said, everyone bring out the choice wine first, and then the cheaper wine after. The guests have too much wine, but you have saved the best of now. और यहाँ पर वो कहता है कि हर लोग अच्छे दाख रस को पहले दे के खत्म कर देते हैं, परंतु आपने क्या किया कि अच्छे दाख रस को बाद तक बचा कर रखा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Now listen, so many times Christian people says
Jesus turned water into wine so I can have some liquor or I can have some wine. I'm not preaching about promoting liquor or promoting wine. Okay? हालेलुया। इस चीज को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मसीहों के अंदर ये बातें हैं। वो ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया तो शराब पीना है। उनके दिमाग में ये बात है। Amen. परंतु ऐसी बातें नहीं है। No, 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 no. ऐसी बातें नहीं है। Listen, we are not going to adopt Jewish culture, okay? यहूदियों के हर एक रीति रिवाज को हम नहीं लेंगे। Amen. Maybe Amen. the Jews used to drink that wine, but I am not interested to adopt those Jewish culture because Christ is not born to adopt Jewish culture. Hallelujah. Christ was born to give us life and abundance. सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए आए थे कि किसी रीति रिवाजों में हमें ना पढ़ाते हुए एक सचमुच अद्भुत जीवन देने के लिए। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Wine, there is a spiritual meaning for the wine, okay? याद रखिए मेरे प्रियो, दाख रस का एक आत्मिक अर्थ है। Amen. आमीन। It gives joy in your spirit. जिसका ये अर्थ है कि वो एक नया आनंद और ताजगी आपकी आत्मा में भर देता है। It gives you strength in your spirit. आपकी आत्मा को वो आत्मिक ताकत दे देता है। It turns your mourning into dancing. जिसका ये अर्थ है कि वो आपकी उदासी को आनंद में बदल देता है। That wine gives you a taste. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर में ये जो दाख रस है आपको एक स्वाद दे देता है। Through the word of God, it gives you a taste. जो आपको परमेश्वर के वचन से वो स्वाद मिलता है। The moment when you have that taste of the word of God, जैसे ही आपको स्वाद मिलता है परमेश्वर के वचन का, suddenly things gets changed. अपने आप सारी चीजें बदल जाती So है। many people, they have no idea. They never taste the word of God. कई लोग, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है और वो कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं चखते। Your miracle is all based on when you taste the word of the living God. याद रखिए, आपका चमत्कार एक ही बात पे निर्धारित होता है, जब आप परमेश्वर के वचन को चख लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The word will come like a sweet wine in your spirit. याद रखिए, वचन आपकी आत्मा में एक मीठा दाख रस की तरह आता है And it gives you so much of taste. और वो आपको बहुत स्वाद देता है। And you fill with joy. आप आनंद से भर जाते हैं। Hallelujah. You हालेलुया। receive a new strength. आप एक नई ताकत को पाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। This is all spiritual, okay? ये सारी आत्मिक बातें हैं। I'm not talking about this wine, okay? याद रखिए, यहाँ की किसी दाखरस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। I'm talking about a spiritual wine. मैं एक आत्मिक दाखरस के बारे में बात कर रहा हूँ। You know, I want to read that verse. It says in Psalm, it says, wine always gladdens our heart. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो भजन संहिता में लिखा है कि जो दाख रस है वो हमारी सचमुच आत्मा को आनंद से भर देता है। The Bible says in Psalm 104 and verse 15, and wine is there to gladden the heart of man. और भजन संहिता 104 अध्याय के 15 वचन में यूं लिखा है कि दाख रस जो है वो हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 There was a crisis in that wedding. सचमुच उस विवाह में एक आपातकालीन परिस्थिति हो गई थी। But when miracle came, लेकिन जब चमत्कार आया, there was one more question came. एक और वहाँ पे प्रश्न उठ गया। Why you saved the best wine? और यहाँ पे प्रश्न ये उठ गया कि सबसे अच्छे दाख रस को अब तक आपने क्यों बचा के रखा था? Amen. हालेलुया। They have no idea that this miracle was happened. और उन्हें किसी भी तरह से इस बात का ज्ञान नहीं था कि अभी तक ये चमत्कार कहाँ छुपा के रखा That गया। means the best is going to come. जिसका ये अर्थ है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में जो अभी उत्तम है वो आने वाला है। Praise the Lord. Praise the Now Lord. verse 11 it says, when Lord Jesus did it, और 11वें वचन में लिखा है जब यीशु मसीह ने ऐसा किया, this was the first sign and the miracle. वो पहला चिन्ह और चमत्कार था। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, he manifested his glory. और उन्होंने अपनी महिमा को वहां पे प्रकट किया। By doing this miracle, he has manifested his glory. इस चमत्कार को करने के द्वारा यीशु मसीह ने अपनी महिमा को वहां पर प्रकट किया। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, and his disciple believed in him.
और उनके चेलों ने उन पर विश्वास कर लिया। This miracle was manifested by God's glory. सचमुच ये चमत्कार परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रकट किया गया। Lord Jesus said in the beginning that his time has not come. जबकि शुरुआत में तो यीशु मसीह ने कह दिया था कि मेरा वक्त, मेरा समय नहीं आया है। Amen. आमीन। But his mother said, do it whatever he says to you. लेकिन उनकी माता ने उनके नौकरों को आज्ञा दिया कि मेरा बेटा जो कुछ भी कहता है उसे तुम पूर्ण करो। A faith of a person has challenged the Lord Jesus to do miracles. सचमुच हम देखते हैं एक व्यक्ति के विश्वास ने सचमुच यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए तैयार कर दिया। According to this word, इस वचन के अनुसार today I am also believing God that God is going to turn your sorrow into joy. मैं भी विश्वास करता हूँ कि सचमुच परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says he manifested his glory. और बाइबल कहती है कि उन्होंने अपनी महिमा को वहां पे दर्शाया। Amen. आमीन। Because the guest who has came into that particular wedding, they saw the best wine. Hallelujah. हालेलुया। और जितने भी अतिथि उस विवाह में आए थे उन्होंने पाया कि उत्तम दाखरस अभी तक है। Amen. आमीन। Now thus says the Lord. परमेश्वर यूं कहता है, Thus says the Lord. यूं कहता है, Your best things are going to come into your life. आपकी उत्तम आशीषें आपके जीवन में आने जा रही है। The best is ready to come into your life. सचमुच जो उत्तम है वो आपके जीवन में आने जा रहा In है। this time of crisis, best things are going to come into your life. इस कमी घटी के समय आपके जीवन में उत्तम चीजें आने जा रही हैं। As the Lord Jesus has manifested his glory, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को वहां पर दर्शाया, he will manifest his glory in your family. वो अपनी महिमा को आपके परिवार में दर्शाएंगे, So that you will believe him and you will follow him. ताकि आप उन पे विश्वास करें और उनके साथ चलने पाए। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। By faith in his word, विश्वास के द्वारा उनके वचनों से your time can come for your miracle. अब वो समय आ जाएगा आपके चमत्कारों के लिए। That means you can decide your own time. जिसका Hallelujah. ये अर्थ है कि आप अपने समय का खुद ही चुनाव करेंगे। The word has so much of power वचन में बहुत ज्यादा सामर्थ है, that you can create your own time. आप अपने चमत्कार के समय को खुद बना सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। At the time of crisis, you should not think that the time will come or time will come. In the crisis, you can create your own time in Jesus' name. जब आप सचमुच बुरे वक्त से गुजरते हैं, जब कमी घटी का समय होता है, वही समय है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने चमत्कार को उसी वक्त पैदा कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। According to the Old Testament, पुराने नियम के अनुसार the Bible says there is a time for everything. बाइबल में यूं लिखा है कि हर एक चीज का एक वक्त है। Amen. आमीन। But here, लेकिन यहाँ पर the Lord Jesus never moved according to the old covenant. लेकिन यीशु मसीह पुराने वाचा के अनुसार तो चल ही नहीं रहे थे। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Amen. Amen. Because there is a crisis. क्योंकि वहां पे सचमुच आपातकालीन परिस्थिति थी। Amen. आमीन। And the Lord Jesus knew about the और problem. यीशु मसीह को मालूम चल चुका था कि परेशानी क्या है, And through faith, और विश्वास के द्वारा he was waiting for the faith to move. वो इंतजार कर रहे थे कि वो विश्वास में वो चलने पाए। Hallelujah. आमीन। And the mother of Jesus moved in the faith. और यीशु मसीह की माता विश्वास में चल रही थी, And the servants were also moving in faith. और जितने भी नौकर चाकर थे वो भी विश्वास में चल रहे थे। Lot of people were moving in faith. वहां पे बहुत सारे लोग जो कार्य कर रहे थे वो विश्वास में चल रहे Because थे, heaven has came down. क्योंकि स्वर्ग तो नीचे उतर के आ गया, Father has came down. पिता तो नीचे उतर के आ गए, Glory has came down. महिमा नीचे आ गई थी। Only the word needs the power to manifest his power in that place. क्योंकि सिर्फ वचन को ही जरूरत था कि वो सामर्थ्य उस स्थान पे पूर्ण होने पाए। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, the days are coming. वो दिन आ रहा आपके जीवन Best में, is going to come. वो सचमुच आशीष आएगा। God's glory will come into your family. परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में आएगी। Automatically, every will be moving in faith. अपने आप सब आपके परिवार में विश्वास में चलेंगे। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, here also, यहाँ पर भी in this wedding, इस विवाह में
Mother Mary and the servants all were moving in faith. उनकी माता मरियम और जितने भी नौकर चाकर थे वो सब विश्वास में चल रहे थे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों चल रहे थे? Because God's glory was manifested in that place क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस स्थान पे आकर संपूर्ण रीति से प्रकट हो रही थी through the Son Lord Jesus Christ. उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, today, आज in your circumstances, आपकी परिस्थितियों in में, your crisis, आपकी कमी घटी के समय, in your life, आपके जीवन में Holy Spirit is directing something in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में कोई निर्देशन दे रहे हैं। Holy Spirit is bringing Lord Jesus to work in your life. पवित्र आत्मा यीशु मसीह को आपके जीवन में ला के दे रहे हैं ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर Through सके। this word, He is going to penetrate your spirit. इस Hallelujah. वचन के द्वारा वो आपके आत्मा को छेद कर देंगे। He is going to penetrate through the word. He is going to penetrate your heart. वो इस वचन के द्वारा आपके हृदय को छेद देंगे। And to tell you that your best is going to come. आपको ये बताने के लिए कि आपका अच्छा और सुंदर समय आने वाला है। Just now the Holy Spirit has whispered in my ear. इसी वक्त पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में कहा है, You have already received your best. आपने सचमुच अपना उत्तम पा लिया है। Say everybody, I received it. आप कह दीजिए कि मैंने मेरा उत्तम पा लिया I है। have received it. मैंने पा लिया है। I have received it. मैंने पा लिया है। It has already manifested. ये सचमुच पूर्ण हो चुका It है। has already been वो manifested सचमुच संपूर्ण रीति से पूर्ण हो चुका है because of the glory of God. क्योंकि परमेश्वर की महिमा के द्वारा My miracle is coming. Hallelujah. मेरा चमत्कार आ गया है। My problem is going to turn. Hallelujah. मेरी परिस्थितियां परेशानियां घूम जाएंगी, My खत्म हो sorrow जाएंगी। will turn into joy. मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। There was a crisis, सचमुच वहां पे एक परिस्थिति, एक कमी घटी की थी and immediately that crisis was solved, and the water turned into wine. और अचानक से हम देखते हैं कि वो परिस्थिति उसी वक्त ठीक हो गई और वो जो पानी था वो दाख रस में बदल गया। And the guest has no idea from where that wine came. और सचमुच जितने भी विवाह के अतिथि थे उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उत्तम दाखरस आया कहां से। Amen. आमीन। Now there was the fourth person. और वहां पे एक चौथा व्यक्ति भी मौजूद था। They were watching it. वो लोग सारे लोग देख रहे थे, They were hearing it. वो सब सुन रहे थे। What the mother Lord Jesus said. यीशु की माता क्या कहती है? Who came to Jesus? कौन यीशु के पास आता है? What they said to Jesus. उन्होंने यीशु से क्या कहा? And what Jesus replied. और यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? And what happened. और फिर क्या हुआ? What Jesus said to the servant. और उसके बाद यीशु मसीह ने नौकर चाकरों को क्या आज्ञा दी? And what the servant has done it. और उसके बाद नौकरों ने क्या काम किया? And how Jesus has told them to present that wine. और कैसे कहा कि इस दाखरस को उस विवाह के अधिकारी के पास जाके पेश करो। And that fourth person is watching. चौथा व्यक्ति जो था वो सब कुछ देख रहा था। And the moment when they saw that miracle. और जैसे ही उन चौथे व्यक्तियों ने उस चमत्कारों को देखा, And the disciples started believing more in Jesus. हालेलुया। और वो चौथा व्यक्ति, उनके सारे चेले और भी ज्यादा प्रभु यीशु पे विश्वास करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। There were two things which are very powerful. दो चीजें यहाँ बड़ी सामर्थ्य थी। One was filling the water पहली बात है ये कि पानी का भरा जाना and drawing the water. और पानी का निकालना। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, when we come to the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के पास आते we हैं, must be filled by the power of the Holy Spirit. सचमुच ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा से हम भर जाएं, Hallelujah. उनके सामर्थ से भर जाएं। Amen. आमीन। And now drawing the water. जिसका यहाँ पे ये अर्थ है कि पानी का निकाला जाना। Amen. आमीन। He should draw something out of you. जिसका ये अर्थ है कि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से, यीशु मसीह आपके अंदर से कुछ निकाल के लाए बाहर। You must allow him to draw something out आपको of you. उन्हें आज्ञा देना होगा कि वो आपके अंदर से कुछ निकाल के लाए। The miracle happened when they draw the water out of that jar. Okay. याद रखिए मेरे प्रियो, चमत्कार तभी संभव हो पाया कि जब सचमुच उस घड़ों से वो पानी निकाला गया। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that God will send his angels. सचमुच परमेश्वर अपने स्वरदूतों को आपके लिए भेजेंगे। God will send his Holy Spirit पवित्र आत्मा को परमेश्वर आपके लिए भेजेंगे, so that he will draw out of
out of water from your life. ताकि उस पानी को वो आपके जीवन से बाहर निकाल So के that लाए। that water will be presented before the guest. याद रखिए, वो आपके जीवन से निकला वो जो जल है वो सचमुच आपके अतिथियों के सामने पेश किया जाए। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। So that there will be a miracle. ताकि वहीं पर चमत्कार होने पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। The water is turning into wine. याद रखिए मेरे प्रियो, सचमुच वो जल दाखरस में बदल रहा है। And this was the first miracle of Jesus in the और Bible. ये पहला चमत्कार था यीशु मसीह का बाइबल के अनुसार, It means जिसका ये अर्थ है, it was the introduction of Lord Jesus Christ. जिसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह का वहां पर परिचय हुआ। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से Lord सुनिएगा। Jesus was introduced through the Holy Spirit, okay? याद रखिए आप लोग इस बात को कि हमेशा यीशु मसीह का परिचय पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ है। Amen. आमीन। But through miracle, लेकिन चमत्कार के it द्वारा was introduced for the first time. ये पहली बार उनका परिचय हुआ। Amen. In आमीन। the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, I am introducing that Jesus Christ who is going to do miracle into your life. मैं उसी यीशु मसीह को आपके जीवन में परिचय कराता हूँ जो आपके जीवन में उस चमत्कार को लेके आएंगे। And I knew it very well. और मुझे मालूम है अच्छी तरह That से He is going to do miracle into your life. वो सचमुच आपके जीवन में चमत्कार को पूर्ण करेंगे, Because we are in that season. क्योंकि हम सचमुच उस समय और मौसम में मौजूद In हैं। that season, उसी मौसम में मौजूद when हैं crisis come, He comes. जब कमी घटिया और आपातकालीन परिस्थिति होती है तब प्रभु यीशु मसीह आते हैं। When crisis come, He comes. सचमुच आपातकालीन परिस्थिति होती है तो यीशु मसीह आते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. He हालेलुया। has never leave you nor forsaken you. उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा You है। might be going through a very great crisis in हो your life. सकता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ही ऐसी आपातकालीन परिस्थिति से गुजरते हैं। Allow your spirit so that He can move in faith. अपनी आत्मा को आज्ञा दीजिए कि वो विश्वास में चलने पाए, Move in faith. विश्वास में चलने पाए। Don't use your minds. अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, Use your heart. अपने हृदय का इस्तेमाल करें, Use your spirit. अपनी आत्मा का इस्तेमाल करें। Say, Lord Jesus, आप कहें, प्रभु यीशु have mercy on my life. मेरे जीवन पे तू तरस खा। I believe in you. मैं तुझ पर विश्वास करता I हूँ, believe in you. मैं तुझ पर विश्वास करता That you हूँ, are going to take me out of this crisis. ताकि सचमुच प्रभु आप मुझे इस आपातकालीन परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। Praise the Lord. Praise the So Lord. much of crisis there, but nobody knew when this miracle happened. हालेलुया। उस विवाह में सचमुच बहुत ज्यादा आपातकालीन परिस्थिति थी और किसी को नहीं मालूम था कि कब ये चमत्कार हो जाएगा। Amen. आमीन। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, whatever you are going through, आप जो भी खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं, nobody will know. किसी को मालूम नहीं होगा, Nobody will know किसी को मालूम नहीं what you चलेगा went through, how the miracle happened. और कैसे ये सब चीजें हुई और चमत्कार हो जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे ना He त्यागेंगे, will never put you to shame. वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। He will not put you shame before the people. वो लोगों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। Remember, God is going to lift you up. Okay? याद रखिए परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। Though you went through a darkest hour, जबकि आप सचमुच अंधकार के समय से होके गुजरे but हैं, Lord came and He lifted you up. लेकिन परमेश्वर आए और उन्होंने आपको ऊपर उठा दिया। Hallelujah. हालेलुया। The powerful word in this scripture was the Lord Jesus has manifested His glory. Hallelujah. सचमुच सामर्थी वचन इस वचन में छुपा है कि सचमुच पर यीशु मसीह की महिमा वहां पर प्रकट हो गई। Hallelujah. Hallelujah. And I pray today, और आज मैं प्रार्थना करता oh हूँ, Lord Jesus, ओ प्रभु यीशु, manifest your glory. अपनी महिमा को उनके जीवन में दिखा दे। Manifest your glory upon each and every GRPC हर family. एक GRPC परिवार के जनों के जीवन में तू अपनी महिमा को प्रकट कर दे।